So, India win the series 3-1. Sanju Samson has been phenomenal. उसका जो पिछले 5 मैच का जो रन हुआ है उसमें 3 शतक हैं और 2 शून्य हैं. Arshdeep got 95 wickets and that tells you कि कितना विश्वास है खुद के काबिलियत में. Tilak Varma has been delightful. Just his confidence, his energy, his intensity, phenomenal. India have finished the year on a high, 26 matches, 24 wins. Surya has led this team beautifully. As a senior pro, उन्होंने दिखाया कि अपने आप का पोजीशन जो है बैटिंग पोजीशन सैक्रिफाइस करके एक यंगस्टर को दिया, क्योंकि उस यंगस्टर ने सामने से जाके बोला कि यार सूर्य भाई मुझे थोड़ा ऊपर खिलाओ, मुझे ज़्यादा जिम्मेदारी दो, मैं अच्छा खेलूँगा. एंड उसने क्या किया? 2 मैचेस में 2 शतक जड़े. ब्यूटीफुल. सूर्या actually did that was phenomenal. The fact that he could do that and think more about the team and less about himself as a batter was amazing. South Africa के खिलाफ बहुत ही बेहतरीन सीरीज रहा है. And some of the outstanding performers on this trip to South Africa certainly has been, for me, Arshdeep Singh, Varun Chakravarti as far as the bowlers are concerned. Batters, Tilak Varma and Sanju Samson take a bow. What a phenomenal performance by all of these guys. Tilak Varma has been delightful. Just his confidence, his energy, his intensity, his trust in his own batting, his trust in his skills and the ability जो खुद को वो back करके ना वो shots जो मारता है, phenomenal. And you can see उसका full swing है. And सबसे बड़ी चीज़ तिलक वर्मा की बैटिंग में ना वो उनका strong base जो है, बहुत strong base बनाते हैं और बॉल को मतलब आखिरी समय तक देखकर टाइम करते हैं. He does that so well. I think that's one of his biggest strengths, that strong positions that he gets into. Complicated नहीं है बिल्कुल. उनका टेक्निक बहुत ही सटीक टेक्निक है. It's very clear, it's crisp, it's precise. And वो बॉल को देखकर खेलते हैं. And he also measures the field. He manipulates the field so well, which is what makes him so effective as a batter. Kudos on a fantastic series and winning the man of the series. Well done, Tilak Varma. You deserve so much more. And I truly believe there are many great things to come for you. Keep backing yourself और हमेशा अपने आप में इतना विश्वास रखना and stay hungry, buddy. Sanju Samson has been phenomenal. उसका जो पिछले 5 मैच का जो रन हुआ है उसमें 3 शतक हैं और 2 शून्य हैं. If you're calling him a hit and miss player, he's more of a hit player than a miss. वो जो 2 मिसेस भी हुए थे, मेरे हिसाब से उसने उस पर काम किया and he came back and he understood. यार मैं अपने आप को थोड़ा समय दे देता हूँ. एक आध ओवर में थोड़ा विकेट नाप लेता हूँ. मैं थोड़ा परख लेता हूँ क्या विकेट क्या है, बॉलर्स क्या कर रहे हैं, बॉल कैसे आ रही है आज. Just by doing that, वो पहला 6 आ गया. उस पहले 6 के बाद वो पहला 6 जो मारा था उसने off the front foot was very Rohit Sharma-esque. Off the front foot to hit a 6 on that wicket is very, very hard. And he was able to do that, and that brought him a lot of confidence. And उसके बाद there was no looking back. Just clean, crisp, stylish batting. जहाँ पे उसने अपने आप को back किया and he just batted and batted and कभी भी never felt like he was hitting the accelerator fully, but consistently hitting the accelerator. बीच में वो 90 और 100 के आसपास try कर रहा था पर नहीं लग रहा था, but he got to a point where he made sure that he batted through with Tilak and ended up getting that 100. Excellent knock, excellent series. There's a lot to learn from this series for someone like Sanju Samson. काफ़ी चीज़ें हैं जो टेक्निकली उसको काम करना पड़ेगा, नहीं तो अच्छे टीम के खिलाफ, अच्छे फास्ट बॉलर्स के खिलाफ he can get caught. But वो is always work in progress. And I'm certain कि संजू जैसे प्लेयर अपने आप पे काम करेगा. 200 के बाद he certainly cemented his spot as an opening batter. अर्शदीप सिंह शायद एक लौता प्लेयर है इस प्लेइंग 11 में जो रिटेन नहीं किया गया है. रिकी पॉन्टिंग क्या सोचते हैं मुझे पता नहीं है, या अर्शदीप ने खुद बोला कि मुझे ऑक्शन में जाना है, मैं शायद किसी और टीम के लिए खेलना चाहता हूँ. और मुझे लगता है इस परफॉर्मेंस के बाद, स्पेशली आज की परफॉर्मेंस के बाद, मुझे लग रहा है कि अर्शदीप का 4-5-6 करोड़ ज़्यादा में बिकेगा. And I think that's going to be phenomenal for Arshdeep. But Arshdeep got 95 wickets. And that tells you कि कितना विश्वास है खुद के काबिलियत में.
ही शोन कि वो एक फ्रंट लाइन बॉलर है, हर फेज में बॉलिंग कर सकता है, फर्स्ट 6 में, मिडिल फेजेस में और डेथ बॉलिंग में। फिनोमिनल बॉलिंग किया इस पूरे सीरीज में एंड मुझे लगता है कि ही इज़ गोना बी वन ऑफ द लीडर्स ऑफ दिस ग्रुप मूविंग फॉरवर्ड। पहला सीज़न जब पंजाब के लिए खेला था, अगले सीज़न जब उसने वापस आया था उस टीम में, अलग ही बॉलर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि यार इसमें कुछ अलग है, उसमें खुद में एक विश्वास उसने दिखाया कि यार मेरे में ये क्षमता है, मैं विकेट्स निकालूंगा, बैटर्स को रोकूंगा मैं, एंड विकेट्स सामने से मतलब आगे नए बॉल से मैं विकेट निकालूंगा। एंड ही इज़ डन दैट, बट ही इज़ कंसिस्टेंटली प्लेड इट, ही इज़ फ्लोन अंडर द रेडार एंड ही इज़ ग्रोन एंड ही इज़ ग्रोन अ लॉट अलोंग द वे। सो kudos to Arshdeep Singh for his performance, top class work buddy। वरुण चक्रवर्ती का ये सेकंड कमिंग है इस टीम में। इंडियन टीम में पहले आना, सेलेक्ट होना बहुत बड़ी बात है, पर ड्रॉप होके वापस आना और बड़ी बात है। कमबैक करना इंडियन टीम में शायद सबसे मुश्किल चीज़ है। अपने स्किल्स पे, अपने बॉलिंग पे काम किया, अपने फील्डिंग पे और फिटनेस पे भी ध्यान दिया एंड इज कम बैक। नेचुरल एथलीट नहीं है, पर यू कैन सी दैट देयर इज अ मार्क्ड इम्प्रूवमेंट as a player in his bowling, in his athleticism, in his fielding and in his intensity as a player. He's gotten fitter, he's gotten stronger, he's got overspin now. पहले वो side spin डालते थे, पर अभी he's worked on his overspin, he's become more deceptive. हाँ, थोड़ा प्रेशर में जब आते हैं तो थोड़ा वो प्रेशर ले लेते हैं, at least we can see that from the outside. But मुझे यकीन है कि वो खेलते और खेलते हुए वो I feel like he'll get better and better. एंड मुझे लगता है कि और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंसेस उभर के आएंगे वरुण चक्रवर्ती से। कंग्रेचुलेशंस ऑन अ फैंटास्टिक टूर वरुण। अभिषेक शर्मा वाज आल्सो वेरी स्पेशल इन दिस टूर्नामेंट। आई थॉट ही बैटेड रियली वेल। उसको भी अपने आप के लिए थोड़ा समय लेना चाहिए, थोड़ा टाइम लेना चाहिए विकेट परखने को, थोड़ा बॉलर्स को समझने को पहले दो ओवर में। उसके बाद ही कैन जस्ट गो आउट देयर एंड प्ले हिज गेम एग्जैक्टली लाइक द प्रीवियस गेम एंड दिस गेम। ही डिड इट एब्सोल्युटली राइट। क्लिनिकल बाय इंडिया, साउथ अफ्रीका के लिए बहुत काम है करने को। उनका बॉलिंग वीक है, उनका टॉप ऑर्डर बैटिंग पिछले 1 साल से वीक है, विच इज़ वाई आई फील कि उनके लिए बहुत काम है करने को। मेरे हिसाब से डॉनमन फरेरा जैसे प्लेयर नहीं खेल रहे थे इस पूरे सीरीज़ में, ऑटनी बाटमैन नहीं खेले इस पूरे सीरीज़ में, शायद उनको एक निगल हुआ रहेगा इसलिए नहीं खेलें, क्योंकि ही प्लेड इन द वर्ल्ड कप एंड प्लेड रियली वेल आल्सो, एंड साउथ अफ्रीका हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग दैट्स कमिंग अप। It's been a great series for India and a great way to finish the year. Now on to the BGT.